I hope you all are doing well. So in this session of Unit 10, as you all know that we were doing Income Tax Act 1961, a very important act as from your, if we see from the point of view or UGC NET exam, Unit 10, this income tax comprises a major section, and Income Tax Act se related already we have done 3 to 4 sessions. Those who have joined right now, recently in the very last session, I gave a brief information about this act, how it came into existence and what it contains. So those who have not watched, on the top you see the link, go and watch it out. Now, continuing this tax act, what major important thing is to know the basic terms inside this act. इस act में जो basic terms use हो रही है like assessee, person, known assessee, financial year. So we will cover all these definitions, and not to cover all these and to make a hectic thing for you, we are now covering in this session just 2 definitions. One is who is person and another is what is income as per this Income Tax Act. Okay, Income Tax Act में पर्सन किसे बोला गया है, पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन इंक्लूड होता है, एंड सेकेंडली वी विल सी व्हाट एक्चुअली इनकम इज, क्या क्या ऐसी वी कैन से आपके पर्सनल प्रॉफिट या गेन्स हैं जो आपकी इनकम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इनकम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं. ओके, सो we will do all these things, these 2 definitions as per this act in this session. And before this is our official ways through which you can get to us. You can contact us. This is our contact number and this is our mail address. Many of the students already approaching and they are demanding my notes, so I hope I'm fulfilling all your needs, and rest you can also send your queries to us and we will solve as soon as possible. Now, looking at the definition of person, this definition of person is covered under section 2 of clause 31, right? section 2 clause 31 में define है person. तो ये आप definition का ये section याद कीजिएगा. और person की category में देखिए हर एक person को tax pay करना ज़रूरी है. Each and every citizen of India is liable to pay tax. And उस person की category में, उस citizen की category में कौन कौन आता है? First, an individual, सिंगल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इफ द होल फैमिली आपने एक बिजनेस रन कर रही है, पूरी फैमिली ज्वाइंटली एक प्रॉपर्टी है और अगर उससे इनकम आ रही है तो वो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक स्टेटस है उनको भी अपना क्या पे करना होगा, HUF जिसे हम कहते हैं, दे हैव टू पे देयर टैक्स. अ कंपनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब कंपनी क्या होती है, वट एग्जैक्टली दिस इज, तो हमने कंपनीज एक्ट किया है. Those who have not done this Companies Act we covered in Unit 9, I think. Those who have not done, on the top I'm providing you the link of this particular session जिसमें मैंने कंपनीज के रिगार्डिंग पूरे आपका सेशन कवर किया है. कंपनीज एक्ट को कवर कीजिए. एंड ऑल्सो यूनिट 9 का भी लिंक मैं टॉप पर दे देती हूँ. यूनिट 9 में हमने काफ़ी लीगल एक्ट्स कवर किए हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, negotiable act, GST, very recently we done that, so you can cover your syllabus from there. Coming to the this definition, person में 3 आपको समझ में आ गए, individual, HUF and company. Fourth one is a firm, basically a firm. Then an association of persons. Association of person क्या होता है, like कोई community, ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं. हम वो एक कंपनी नहीं है बट सेपरेटली सब लोगों ने मिलकर उस बिजनेस में अपना प्रॉफिट ले रहे हैं. सो वी से दैट AOP और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर दे आर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, सो वो भी टैक्स पे करेंगे. आफ्टर देन अ लोकल अथॉरिटी, if there is any local body, local authority and they are running their business, they are also entitled to pay tax to the government. Then next is every artificial or judicial person who is not falling in above category, they will also come in this category of person. Every artificial person means that person who is actually not living one, but yes, act as according to all the conditions of a person. They are running their business, they are sharing their profits, they are even sharing their losses, so that's an artificial person. जो कंपनी होती है वो भी एक artificial person होती है. So person की I think आपको definition clear हो गई है. UGC NET exam में question आपको आ सकता है, which among them is not a person as per Income Tax Act. तो आपको काफ़ी options दी गई होंगी and you have to select the odd one out among them.
इफ़ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, दिस पर्टिकुलर टर्म, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। लर्न कर लीजिए, अपने नोट्स मेरे साथ मेंटेन कीजिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट इनकम। अब जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सो दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 24। वो था 31 क्लोज, ये 24 में है इनकम। इनकम तो को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ दिस एक्ट। इनकम में क्या क्या आता है? सो द टर्म इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब आप ये अपने पर्सनल लाइफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास अगर इनमें से कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप टैक्स पे करोगे। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड गेन्स। आपको कहीं से भी अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है या आपको गेन हो रहा है, यू आर इंजॉइंग द मनी ऑफ प्रॉफिट, देन दैट इज योर इनकम। नेक्स्ट डिविडेंड्स। अगर आपने कहीं पर भी शेयर्स खरीदे हैं या कोई आपको डिविडेंड कहीं से मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनकम यू आर एंजॉइंग। नेक्स्ट, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट होती है कोई बॉडी, जैसे कितने सारी ट्रस्ट होती है जिनको डोनेशंस काइंड ऑफ मिलता है, डिफरेंट बिजनेसमैन और पब्लिक डोनेट करती है, तो वो डोनेशन क्या है? एक तरीके से उस ट्रस्ट की इनकम है। वो ट्रस्ट को चलाने का वो एक पैसा है। तो आपके पास जितना पैसा आ रहा है, ये इनकम आ रही है, इसका आपको टैक्स तो पे करना होगा। कितने हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक वी हैव चाइल्ड केयर ट्रस्ट होती हैं, एनिमल केयर ट्रस्ट होती हैं। तो ये जो बेसिकली ये ट्रस्ट होती हैं, इनको पैसा मिलता है, डोनेशंस काइंड ऑफ, वॉलंटरी कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं से भी कोई भी दान दे रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए इनकम है और उनको वो पे करना होगा। फोर्थ वन इज प्रिक्विजाइट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को सैलरी तो मिलती है ही, बट सैलरी के अलावा जो भी उनके प्रिक्विजिट्स होते हैं, लाइक बोनस हो गया, ओके, वेरियस काइंड ऑफ benefits they enjoy in working in a field, so all that also cover under the head of income. Any special allowance or benefit you are enjoying, like child education allowance आपको मिल रहा है, house allowance आपको मिल रहा है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिल रहा है, तो ये जो अलाउंस है किसी भी कंपनी द्वारा, जिस भी फाउंडेशन में आप काम कर रहे हो, सपोज आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर और उस पर्टिकुलर कंपनी से एम्प्लॉयज़ को बहुत तरीके के अलाउंस मिलते हैं, फूड अलाउंस मिलता है, आपको फ्री वेकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो ये सब आपकी इनकम का पार्ट है और उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और डियरनेस अलाउंस जो होते हैं, डीए भी एक आपकी इनकम का पार्ट है, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। Any benefit or requisite to the representative assessee। रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या होता है, इस पर मैं एक सेपरेट सेशन आपको दूंगी जब हम असेसी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये देखिए, अगर रिप्रेजेंटेटिव असेसी कोई बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, वो भी इनकम की कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स इज ऑल्सो इनकम। इंश्योरेंस प्रॉफिट, इंश्योरेंस से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दी हेड ऑफ द इनकम, वो इनकम ही है आपकी। बैंकिंग इनकम ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इफ़ यू हैव वॉन अ लॉटरी से आपको जो भी मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। इफ़ यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ income. So I hope all these heads are clear to you. This is the definition of income as per section 224 clause, and we have done now here two basic definitions of income tax act, that is person and income. You can make your own notes. Till then, keep watching, keep sharing, and if you have any queries, you can reach us through this ways, and don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.